Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 12th grade to today's class. And this is one of the most important points from Unit 5, which I believe is going to help all the students to understand this unit properly and to solve majority of the questions from this unit. So in today's class, which is class number 2, from Unit 5, that is Business Arithmetic. I'm going to talk about a very important, a very important, uh, a very significant, and important from the perspective of examination. And today's topic is break-even analysis for one product and for multiple products. So I have, designed this class in a way that in today's class, you are going to clearly understand what exactly is break-even analysis. And at the end of the class, we have also given you rigorous practice section with you know questions from break-even analysis, and 10 questions I have given along with hints and answers so that you can practice and you can master this concept. So dear students, without much ado, let's start today's class. तो आज की क्लास में हम ये 5 पॉइंट्स लेंगे. The first one is break-even analysis. Second one is understanding break-even point with an example. Third, understanding break-even for multiple products with an example. How does break-even analysis help? And let's solve the following questions from the text. और कुछ रेफरेंस पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैंने आज की क्लास में मेंशन किए हैं, so that the students, those who require the simplest form of explanation, we are trying to give that to the students. Simplest form of application and explanation. So let's start with the first point. What is break-even analysis? Break-even analysis helps us figure out the sales level where there is no profit and no loss. बच्चों, ये एक ऐसा लेवल है सेल्स, ये ऐसी स्टेज है जहां पर जितना पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो रिकवर कर लिया गया होता है. तो इस पॉइंट पर ना आप प्रॉफिट में है और ना आप लॉसेस में है. ब्रेक इवन एनालिसिस, आप जब ब्रेक इवन को एनालाइज करते हैं, इट हेल्प्स अस टू फिगर आउट द सेल्स लेवल वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस. अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई काम है ना सीरियसली करता है, सिंसियरली करता है, उसको ये पता है कि मैंने काम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने कितना रिकवर कर लिया है. आप कभी देखिएगा, मैं कल भी इस पर बात कर रहा था कि कोई बिजनेस है ना ऐसे नहीं डूबता. उसके लिए आपका आलस्य, विदाउट एफर्ट्स के रिटर्न्स, समटाइम्स स्पीकिंग लाई, और ये सब चीजें मिक्स होकर ना एक बिजनेस को डुबोने में मदद करती. तो अगर आप सिंसियरली कोई भी काम करें, चाहे वो बिजनेस है, पढ़ाई है, या अपने करियर की बिल्डिंग है, कुछ भी आप सिंसियरली करेंगे ना, तो इट इज ओनली गोइंग टू रीपे यू बैक. बट पीपल टेक बिजनेस वेरी लाइटली. वो सोचते हैं हम जॉब नहीं करें तो बिजनेस करें, तो बिजनेस में जो अपना बिजनेस है तो जो जी में है वो करें. ऐसा नहीं होता. दिस हैपेंस व्हेन द टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल एक्सपेंसेस. जो कमाया है वो उतना ही हो गया जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया. At this point, business neither gain extra money nor lose any. एक वो पॉइंट आ गया
जहां पर ना आपने कुछ गेन किया और ना आपने कुछ लूज किया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सिंगल प्रोडक्ट एंड मल्टी प्रोडक्ट बिजनेसेस टू नो दिस पॉइंट टू प्लान बेटर। तो अगर आपने अच्छा प्लान करना है, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, अपने आप को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना है, खुद पैसा कमाना है, पीपल दोज हु आर एसोसिएटेड विद यू, आपको उनको पैसा कमवाना है, तो आपको ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज करना चाहिए, उसका यूज आना चाहिए, सो दैट यू कैन प्लान बेटर, सो दैट यू कैन प्लान बेटर। For a single product business, the formula for break even analysis is this: break even quantity, fixed expenses divided by selling price per unit and variable cost per unit. मैं बार दोबारा बताया था बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक इवन क्वांटिटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये आपको गिवन होंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन होगा, आपको कैलकुलेट करना है। ये है सिंगल प्रोडक्ट बिजनेसेस के लिए, दिस इज मेंट फॉर सिंगल प्रोडक्ट बिजनेसेस। In multi-product businesses, we adjust the formula to include weighted averages for the selling price and variable cost. तो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि मैं वेटेड एवरेजेस पर एक अलग से क्लास लूंगा, सेशन बनाऊंगा, तो वो थोड़ा सा भी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। पर आज की क्लास में मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूंगा कि वेटेड एवरेज एग्जैक्टली है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ रहे हैं फॉर सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस और मल्टी प्रोडक्ट बिजनेसेस के लिए। तो अब हम जानते हैं कि वेटेड एवरेज क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। ये आज का रेफरेंस पॉइंट नंबर 1 है, व्हाट इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज है क्या? बहुत सारे बच्चे बार बार इसे यूज करते होंगे, इसे जानते होंगे, पर पता नहीं होगा कि हाउ टू कैलकुलेट इट और ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए, weighted average is a way to find an average where some numbers are more important than others. Instead of just adding all the numbers and dividing by how many there are, we give more value to the important number. तो बच्चों वेटेड एवरेज में आप एवरेज नहीं निकालते, आप उन चीजों की एवरेज निकालते हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिनकी इंपॉर्टेंस और चीजों से ज्यादा है। और इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। अब एग्जाम्पल क्या है? इमेजिन यू हैव 3 बैग्स ऑफ टॉफीज, कैंडीज। 3 बैग्स है आपके पास। बैग 1 हैज 10 कैंडीज। पहले बैग में आपके पास 10 टॉफीज है और हर टॉफी की कॉस्ट है 2 रुपीज। एवरी टॉफी कॉस्ट 2 रुपीज। फिर बैग 2 है, उसके अंदर 20 कैंडीज है और हर कैंडी की कॉस्ट है 3 रुपया। फिर बैग 3 हैज 30 कैंडीज और हर कैंडी की कॉस्ट है 4 रुपया। इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ अ कैंडी, वी डू नॉट जस्ट एड 2, 3 and 4 जो यहां पे गिवन है एंड डिवाइड बाय 3, ये तो एवरेज निकालने का तरीका। इंस्टेड वी कंसिडर हाउ मेनी कैंडीज आर इन ईच बैग एंड देयर वेट। तो हम स्टेप्स ले लेते हैं। पहला स्टेप है, हम स्टेप्स ले लेते हैं। Multiply the price of the candies in each bag by how many candies are in the bag. प्राइस कितना है और एक बैग में कितनी कैंडीज है ये हम देख लेते हैं। तो पहले बैग में 10 कैंडीज थी
और हर कैंडी का प्राइस, टॉफी का प्राइस 2 रुपए था। तो 10 × 2 इज ₹20। फिर हम बैग 2 की बात करते हैं। बैग 2 में कितनी कैंडीज थी, टॉफीज थी? 20। और पर कैंडी का कॉस्ट कितना था? 3 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 20 × 3 इज ₹60। हम एवरेज नहीं निकाल रहे, हम वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। बैग 3 में कितनी टॉफीज थी? बैग 3 में 30 टॉफीज थी और हर टॉफी का क्या प्राइस था? 4 रुपए प्रति टॉफी। तो 30 × 4 is 120. Now add the total. 20 plus 60 plus 120 equals to 200. 120 plus 60 180 plus 20 200. Add the total number of candies. कितनी थी? 10 20 थी, 60 कैंडीज थी। Divide the total cost by total candies. 200 divided by 60, ₹3.33. So the weighted average price of a candy is, अब इन सब बैग की कैंडीज का वेटेड एवरेज प्राइस अगर आप निकालेंगे तो किसी का 4, किसी का 2, किसी का 3 नहीं होगा, ये होगा 3.33। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनी? A weighted average gives more importance to bigger or more important groups to find the real average. तो इस पे आपको थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी बड़े और मोर इंपॉर्टेंट ग्रुप को टू फाइंड द रियल एवरेज। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 + 3 + 4 को 3 से डिवाइड नहीं किया, हमने टोटल वेटेड एवरेज निकाली कि पर बैग कितनी टॉफीज से, उनका क्या कॉस्ट था, और उस हिसाब से अगर हम कलेक्टिवली पर बैग की कॉस्ट निकाले कैंडीज की, तो हमें जाके 2-3 रुपए या 4 रुपए नहीं पड़ रही, वो पड़ रही है 3.33 रुपीज। So weighted average is a way to find an average where some numbers are more important than others. Instead of just adding all the numbers and dividing by how many are there or there are, we give more value to important. So this is the reference point on what is weighted average. Let's move on to the next point. Understanding break even with an example. अब हम ब्रेक इवन को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एग्जाम्पल है बच्चों, अ टॉय कंपनी मेक्स एंड सेल्स टेडी बियर्स। ईच टेडी बियर इज सोल्ड फॉर रुपीज कितना? 50। हर टेडी बियर की कॉस्ट है 50 रुपए। एक कंपनी है टॉय मेकिंग कंपनी जो सॉफ्ट टॉयज बनाती है, टेडी बियर्स, और हर टेडी बियर की कॉस्ट है ₹50। एंड द वेरिएबल कॉस्ट टू मेक वन टेडी बियर इज ₹30। मुझे जरूर पता है, क्योंकि ये मेरी ना लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि बहुत सारे बच्चों को आज से पहले वेटेड एवरेज नहीं पता होगा। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। जिन्हें पता है, दैट्स गुड, दैट्स गुड ऑन देयर पार्ट। पर बहुत सारे बच्चे सारा एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ जाते हैं विदाउट नोइंग अबाउट व्हाट इज वेटेड एवरेज, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड अदर सिमिलर टाइप ऑफ टर्म्स जो आपको जाननी बहुत जरूरी। तो वेरिएबल कॉस्ट इसका था 30 रुपया। द कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹4000। फिक्स कॉस्ट है कंपनी का कि 4000 रुपए के टॉयज तो हम बनाएंगे। पर हमें ये जानना है कि 4000 रुपए में कंपनी कितने टॉयज बनाते हैं विद वेरिएबल कॉस्ट पर टेडी बियर, दैट इज ₹30। और हमें निकालना क्या है कि 4000 रुपए में ये कंपनी कितने टेडी बियर्स बनाएगी अगर उसे बेचना है 50 रुपए पर और वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपए। अब देखिए, हाउ मेनी टेडी बियर्स डज द कंपनी नीड टू सेल टू ब्रेक इवन। तो 4000 रुपए कमाने के लिए या कंपनी को कितने टेडी बियर्स बनाने? टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट, लेट्स यूज द फॉर्मूला। फिक्स कॉस्ट आपकी गिवन है 4000। सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपए।
और वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपए। तो 4000 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 30 जो आ जाएगा आपका 4000 डिवाइडेड बाय 20 equals to 200. The company needs to sell 200 teddy bears to break even. तो अगर कंपनी की फिक्स कॉस्ट 4000 है तो कंपनी को 200 टेडी बियर्स बेचने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मूव टू द पॉइंट वेयर द कंपनी हैज रीच्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर ना कंपनी को कोई लॉस है ना गेन है। हाँ, इसके बाद कंपनी जो भी अर्न करेगी उसमें उसको प्रॉफिट्स होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। ये रेफरेंस पॉइंट आज का नंबर 2 है। पहले मैंने वेटेड एवरेज की बात करी, अब मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूंगा और आगे वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा मैं आज आपसे। तो मैंने आज को सिंप्लीफिकेशन की हद तक मैं लेकर गया। अब फिक्स्ड कॉस्ट की पता होना चाहिए आप। फिक्स्ड कॉस्ट in the context of break even point refers to the expenses that do not change with the level of production or sales। फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पर वो एक्सपेंसेस हैं जो चेंज नहीं होते हैं with the production of sales। These costs remains constant over a certain period, regardless of how many units are produced or sold। Fixed costs are incurred by a business even when no goods or services are being produced। Examples of fixed costs: rent, salaries, insurance, depreciation and utilities। ये खर्चे तो कंपनी के हैं ही, इस फिक्स कॉस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। रेंट आपने पे करना है, सैलरीज आपको पे करनी है, इंश्योरेंस आपको पे करनी है, डेप्रिसिएशन आपको पे करना है एंड यूटिलिटीज आपको पे करनी है। तो फिक्स कॉस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। पर हाँ, उन्हें अचीव तो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट है 4000, तो कंपनी को वो तो अचीव सेल्स के थ्रू ही करेगी ना। जितना वो सेल करेगी उसी हिसाब से वो फिक्स कॉस्ट को मेंटेन करेगी। अगर वो सेल नहीं कर पा रही है तो द कंपनी कैन नॉट मैनेज दिस फिक्स कॉस्ट। ये कॉस्ट चेंज नहीं होती बट ये होती है, इट वोंट चेंज, इट रिमेन्स सो मच। तो इसमें आता है आपका रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एंड यूटिलिटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्रेक इवन फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद एन एग्जाम्पल। अब हम समझेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान पे करना पड़ेगा, बट इट इज सिंपल। नॉट दैट सिंपल बट इट इज सिंपल। A bakery sells cookies, cakes, and pastries. The following information is given. The bakery has fixed cost of rupees 15,000। अब बेकरी क्या क्या बेच रही है? बेकरी कुकीज बेच रही है, बिस्किट्स, केक्स बेच रही है और पेस्ट्रीज बेच रही है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक बिस्किट कितने का है? 10 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 6 रुपए। और सेल्स मिक्स क्या है? 50 रुपीज, सॉरी 50%। तो ये चीजें आपको गिवन होगी एग्जामिनेशन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेल्स मिक्स। कुकीज है 10 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है रुपए 6 और सेल्स मिक्स है 50%। केक्स है पर एक पीस के 200 रुपए का, उस पर वेरिएबल कॉस्ट है 150 रुपए और सेल्स मिक्स है 30%। उसके बाद पेस्ट्रीज की कॉस्ट है। पेस्ट्री
पर यूनिट रुपए 100 की पड़ती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 60 रुपए, और सेल्स मिक्स है 20%। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? दिस इज द वे क्वेश्चन विल कम इन द एग्जामिनेशन। हाउ मेनी total units of all the products combined does the bakery need to sell to break even? अब इस हिसाब से बेकरी को सारे प्रोडक्ट्स कंबाइन करके कितने कितने बेचने पड़ेंगे कि वो ब्रेक इवन पर आ जाए। अब स्टेप 1 है, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर कुकीज इज 10 minus 6 equals to 4. Now this is the formula where you are deducting variable cost from the selling price per unit. तो 10 रुपए कुकीज का है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और मार्जिन कितना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ₹4। स्टेप 2, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है? पहले हमने निकाल लिया कुकीज के लिए, विच इज 4 into 50%। ये हम निकाल रहे हैं वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे केक्स का, तो ये है 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50, और यही हम पेस्ट्रीज का निकालेंगे तो 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40। तो यहां पर हमने 4 into 50% लिया, दिस वन, देन यहां से 50 into 30% लिया, 50 into this 30% ये लिया, एंड 40 into 20%। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 50% of 4 is 2, 30% of 50 is 15, और 20% of 40 is 8। तो ये आ गया 25। यहां पे हमने कैलकुलेट, ये वेटेड एवरेज निकल गया। अब कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटल यूनिट्स। ब्रेक इवन इज फिक्स कॉस्ट, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो फिक्स कॉस्ट आपका कितना आया? 15,000 गिवन है, और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका निकल रहा है ₹25। तो 15,000 डिवाइड बाई 25, 600 यूनिट्स। The bakery need to sell total 600 total units, combined cookies, cakes and pastries to break even. तो बच्चे बेसिक क्वेश्चन, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो स्टेप 1 में आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है, सबका कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है सारे गिवन प्रोडक्ट्स का, कुकीज, केक्स एंड पेस्ट्रीज। इसका निकलाया था 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। तो पहले आपने निकालना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिर आपने निकालना है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसे सेल्स मिक्स के साथ जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपने ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी है। जो भी आपका वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, जो कि आएगा रुपीज, जो भी मतलब आएगा फर्दर वैल्यूज के साथ, तो यहाँ पे आया है ₹25, तो उसको आप ब्रेक इवन क्वांटिटी का या ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आप डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट द आउटकम दैट what will be the break even point if this fixed cost is given, on behalf of
दीज मैनी प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो मैं आपको आने वाली क्लासेस में करवाऊँ। बट बेसिक understanding break even point for multi products is this. Let's move on further. अब मैं बात करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? वो कॉस्ट जो वेरी करे, वो कॉस्ट जो वेरी करे। वेरिएबल कॉस्ट इज द मनी यू स्पेंड दैट चेंजेस व्हेन यू मेक और सेल मोर थिंग्स। इफ यू मेक अ लॉट, you spend more. If you make nothing, you spend nothing. Simple example. Imagine you are selling cupcakes. For each cupcake, you need to buy atta, maida, chini, frosting sugar, paper cup. If you make one cupcake, you only need a little flour and sugar. If you make 10 cupcakes, you need 10 times more. So the cost keeps changing based on how many cupcakes you make. अगर आप ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा वेरी होगी। भाई फ्लावर की भी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, शुगर की भी लगेगी, फ्रॉस्टिंग की भी लगेगी, पेपर कप्स की भी लगेगी। आप कम यूज करोगे तो कम लगेगी, और आप नहीं यूज करोगे तो जीरो रहेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट इज दिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। इट चेंजेस, इट चेंजेस। व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट? बिकॉज इट चेंजेस। जितनी अमाउंट में आप प्रोडक्ट बनाओगे उतनी अमाउंट में वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी। कम प्रोडक्ट बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम वेरी करेगी, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा वेरी करेगी, और बिल्कुल कुछ नहीं बनाओगे तो इट विल रिमेन स्टैटिक, जीरो। हाउ डज ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके बोर्ड्स में कई बार आया हुआ है। हाउ ब्रेक इवन, हाउ डज ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प? इट्स अ क्वेश्चन। ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूजफुल इन मेनी वेज। ये आपको 2 या 2.5 मार्क्स में आएगा। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट हेल्प्स बिजनेसेस सेट प्रॉफिट गोल्स एंड सेट टारगेट्स। भाई हम कितना बेचेंगे ताकि हम प्रॉफिट्स कमा सकें। और बच्चों मैं सच बताता हूं, अगर आप इस यू नो सिस्टम से, इस फॉर्मेट से बिजनेस करेंगे ना, तो बिजनेस कैन नेवर फेल। बिजनेस फेल वहां होता है जहां पर बिजनेस को ना मन से करा जाता है, गट फीलिंग्स, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, लॉस भी ठीक है, गेन भी ठीक है, लॉस कम हो गया वो भी ठीक है, गेन कम हो गया, ऐसे नहीं। इट हैज टू बी स्पेसिफिक। इट हेल्प्स बिजनेस सेट सेट प्रॉफिट गोल। पे हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, ताकि हम चीज को मेजर कर सके। तभी तो दिल लगेगा काम में। Are you getting it? आप पढ़ाई बड़े दिल से करिए, आपका नौकरी में बहुत दिल लगेगा। आप पढ़ाई दिल से ना करें, नौकरी में फिर दिल लगता है नहीं लगता है डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सेकेंड पॉइंट, इट आइडेंटिफाइज विच प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू कवरिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अभी कौन सा प्रोडक्ट है जो कैश क्रॉप की तरफ बिक रहा है, जिसको हमें सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही बिकता रहता है। जैसे अगर मैं अमूल का नाम आपके सामने लेता हूँ ना, अमूल, आपके दिमाग में ना सिर्फ एक ही चीज आएगी, और वो है बटर। अटरली बटरली डिलीशियस। फिर मिल्क। थर्ड चीज आते आते ना, तो ये कैश क्रॉप्स है। तो उन्हें पता है कि यार ये चीज बिकेगी ना, भाई हम मार्केट में ये चीज तब देंगे बटर और मिल्क जब हमारी और चीजें साथ ली जाए। तो दीज आर सपोर्टिव आइटम जिनके बिहाफ पे और चीजें भी। इट अलाउज मैनेजमेंट टू डिसाइड इफ अ प्रोडक्ट इज वर्थ कंटिन्यूइंग। अब प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा, बिक ही नहीं रहा, ग्राहक ही नहीं आ रहा, तो आपने ओनली फॉर द सेक ऑफ आई एम डूइंग बिजनेस, और बिजनेस कर रहा हूँ लॉस में ही कर रहा हूँ, लॉस होते रहते हैं। दैट्स नॉट द वे, दैट्स नॉट द वे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। तो जो काम नहीं कर रहा है वो बाहर, और जो काम कर रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। फॉर मल्टी प्रोडक्ट बिजनेसेस, सेल्स मिक्स प्लेज अ वाइटल रोल। The sales mix is the proportion
ऑफ हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड। अब सेल्स मिक्स क्या है? सेल्स मिक्स है वो प्रपोर्शन जो बताता है कि हर प्रोडक्ट कितना बिकेगा, 10%, 20%, 25%, 30%। तो ये सेल्स मिक्स है। हाँ, मैंने बनाया होगा। जब मैं खुद से आपकी कंटेंट बनाता हूं तो ऑलवेज मेक, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेल्स मिक्स क्या है? द सेल्स मिक्स इज द प्रपोर्शन ऑफ हाउ मच ईच प्रोडक्ट, अरे कहां पर है, मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस सोल्ड। तो ये आज का बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास। अब व्हाट इज सेल्स मिक्स? सेल्स मिक्स is like having a big box of different toffees candies, and you know how much each type you are selling। और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी कैंडी कितनी कितनी बेच रहे हैं। It is the way different things you sell are divided into a group. Simple example, imagine you have a candy shop and you sell chocolate bars, 2 out of every 10 कैंडीज यू सेल। अगर आप 10 कैंडीज बेचते हैं तो उसमें से चॉकलेट कितनी बेचते हो? दो। लॉलीपॉप्स, 3 out of 10 कैंडीज, तो 2 चॉकलेट बार्स, 3 लॉलीपॉप्स। और गमीज, 5 out of 10 कैंडीज। द सेल्स मिक्स टेल्स यू द प्रपोर्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ कैंडी सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी 10 कैंडी सोल्ड उसका सेल्स मिक्स क्या है, कि मिक्स होकर सेल्स कितनी बनी, प्रोडक्ट को मिक्स कर कर सेल्स कितनी बनी, दैट इज सेल्स मिक्स। तो 2 चॉकलेट बार्स, 3 लॉलीपॉप्स और 5 गमीज, तो ये 10 कैंडीज का सेल्स मिक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैं बनाते ही कंटेंट इतना इजी हूं, एनी बडी कैन अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये आपकी बुक का क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए इसको अलग रखा। ये आज का लास्ट पॉइंट, 5वां। मैंने कहा बच्चों को मैं लास्ट में बताऊंगा इसको, ठीक है। और ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, दो, हाँ 4 स्लाइड्स में आए। स्टेप्स टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अरे आपकी बुक में से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द सेल्स मिक्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। द टोटल फिक्स कॉस्ट इज 40,000। प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट का नाम है ए, बी और सी। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना गिवन है? 40,000। कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, वो आप कर लेंगे। 15 - 9, 21 - 14 और 36 - 19। कैलकुल डिटर्मिन द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ सेल्स मिक्स। जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा उसको आप सेल्स मिक्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, कि मैंने पिछले फॉर्मेट में करके दिखाया था। फिर कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स ऑफ सेल्स मिक्स। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द सेल्स मिक्स। कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज फॉर ऑल 3 प्रोडक्ट्स कंबाइंड। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा 6 से 7 मार्क्स। क्वेश्चन 5 का भी आ सकता, आप इसे 5 से 6 मार्क्स, 5 6 मार्क्स का लेके चलिए, टेंटेटिव। प्रोडक्ट ए की सेल्स पर यूनिट है 15 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपए, और सेल्स मिक्स परसेंटेज है 20%। बी की सेल्स प्राइस पर यूनिट है 21 रुपया,
वेरिएबल कॉस्ट है 14 रुपए और सेल्स मिक्स परसेंटेज है 20%। प्रोडक्ट सी की सेल्स प्राइस पर यूनिट है 36 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 19 रुपए और सेल्स मिक्स परसेंटेज है 60%। सो लेट्स चेक द कैलकुलेशन। अब हमने पहले पहले स्टेप में क्या लेंगे हम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो मैं कह रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 15 - 9 6, 21 - 14 7, 36 - 19 17, 7 और 17। ये आपका निकल गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब आपने निकालना है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एक बार क्लास दोबारा से पीछे जाकर देख लीजिएगा। इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, प्रोडक्ट ए का 20%, प्रोडक्ट बी का भी 20% था, सी का 60% था। लेट्स हैव अ लुक। देखिए 20%, 20% और 60%। आप कैलकुलेट कर लीजिए। 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाय 100 इज 6 × 20 डिवाइडेड बाय 100। 6 दूनी 12, 10 का पॉइंट लग गया। तो 1.2, 1.4, 10.2, इन्हें वेटेड एवरेज निकालने के लिए सम कर दिया। 1.2 प्लस 1.4 प्लस 10.2 इज इक्वल टू 12.8। ये इसका सम आ गया। तो आपका, आपको ये आज सीख गए आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकालते हैं, ये आप सीख गए वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकालते हैं मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए, वो आप सीख गए। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी आपको गिवन है, 40,000। और आपका और आपका वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना आया है, 12.8। तो आप यहां पर देखिए ये हियर 40,000 डिवाइडेड बाई 12.8, तो आपका आया है 3,125 यूनिट। तो कलेक्टिवली कंपनी को 3,125 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव द सेल्स ऑफ 40,000 रुपीज। सिंपल है, आगे चलते हैं। अब ब्रेकिंग डाउन यूनिट्स बाय प्रोडक्ट। Break each unit for each product based on the sales mix. The next step is to calculate how many units of each product are needed at the break-even point using their sales mix percentage. तो टोटल कितना आया था, 3,125। तो प्रोडक्ट ए कितना बेचेंगे, 3,125 का 20%, 625। आप कैलकुलेट कर लेंगे, इजी। 3,125 इन 220 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 5 द 10 0 1 2 2 द 4 5 2 1 द 2 2 3 द 6। और बच्चों 10 यहां से है तो ये डेसिमल है, ये ऐसे। तो 625, 625 और 1870। अब हम एक चीज और कर लेते हैं, 625 प्लस 625 प्लस 5 7 8 1। तो ये आ गया 15, 1 12, 1 1 और ये आ गया 2। तो 3 3 1 2 5 आंसर आ गया। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, सारे बच्चों क्लियर हो गया। कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज। अब ब्रेक इवन सेल्स को रुपीज में निकालना है। To find the total revenue at break even, multiply the break even points, even units of each product
बाय इट्स सेलिंग प्राइस। तो कितने रुपए का बेचना पड़ेगा? 625। कितने का था? ये था 15 रुपए। 15, 21, 36। 15, 21 और 36। तो 625 में इंटू 15, 9,375। 625 into 21, 13,125। एंड 1875 जो प्रोडक्ट सी है, जिसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट है 36 रुपया, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1875 से। तो 9375, 13125 एंड 16,500। सो टोटल रेवेन्यू इज 90,000। So at rupees 90,000 the business breaks even without any profit or loss. तो अगर कंपनी 90,000 रुपए के तीनों प्रोडक्ट्स कलेक्टिवली 20% ए, 20% बी और 60% सी बेचेगी, तो कंपनी ब्रेक इवन पर लाइक। तो बच्चों, with this, we have come to the end of today's class, where we have taken 5 very important points. What is break-even analysis? Understanding break-even point with an example. Understanding break-even point for multiple products with an example. How does break-even analysis help? And solving a question from your textbook. एक बार पीछे जाके फटाफट से रेफरेंस पॉइंट चेक कर लेते हैं। आज हमने बात की है, पहला रेफरेंस पॉइंट लिया है वेटेड एवरेज पॉइंट पर या वेटेड एवरेज पर। दूसरा हमने लिया है फिक्स कॉस्ट के ऊपर। तीसरा हमने लिया है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। और चौथा लिया है हमने सेल्स पिक्स के ऊपर। हमने बुक का एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर है, और सिंप्लीफाई मैंने किया टू गिव यू द बेस्ट आउटपुट दैट व्हाट एग्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट इज और ब्रेक इवन एनालिसिस इज। सो बच्चों, दीज आर वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, और हो सके तो इस क्लास को 2 से 3 बार देखिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। एंड इन रिग्रेस प्रैक्टिस सेक्शन, practice questions on break even point, basic BEP calculations given है आपको, with hints and answers. Question from BEP for multiple products, एक single product के multiple products के। So सबको मैंने सॉल्व करके दिया आपको, so that you people can find it easy. प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस exactly is the preparation for success. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जैसे पता है कि मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन लास्ट पॉइंट तक बच्चों का साथ नहीं छोड़। सो 5 क्वेश्चन है सिंगल प्रोडक्ट के लिए, और 5 क्वेश्चन है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों, with this we have come to the end of today's class. Until we meet next time with another class from Business Earth Matter, stay tuned with us. और जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है कि इन क्लासेस को वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन फॉर दीज क्लासेस। So it's a request that all you people should encourage those students, those who are willing to learn about entrepreneurship, जिन्होंने 11th 12th में entrepreneurship ले रखा है, so that they can get benefit. So until we next time, bye bye for now. God bless you all, and always remember, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. Bye bye. God bless you all.